হ্যাঁ, যারা ডক্টর হতে চায়, যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, প্রত্যেকটা মেয়ে যারা যাই হতে চাক না কেন, সবার যেন স্বপ্নটা পূরণ হয়। আমরা তার জন্যই বিচারে নেমেছি, যারা মেয়েরা কোনো নির্ভয়ে বাইরে বেরোতে পারে, নির্ভয়ে চাকরিতে যেতে পারে, সব কিছুটা করতে পারে নির্ভয়ে, সেটা ঘরে এবং বাইরে সব জায়গায়। মেয়ে হিসাবে নিজেকে কতটা সুরক্ষিত মনে করেন? নিজে এখনও পর্যন্ত সেফ ফিল করি না, বাইরে বেরোলে এখনও ভয় লাগে, বিশেষ করে এই কিছুদিন ধরে খুবই ভয় লাগছে, কিন্তু তার জন্যই বাইরে বেরোনো, আজকে তার জন্যই বিচার, যাতে আমরা এই নির্ভয়ে বাইরে বেরোতে পারি। सोच लीजिए ये बच्ची खुद बोल रही है कि हम लोगों को भरोसा ही नहीं है कि हम लोग सुरक्षित है। जय हिंद। अभी हम लोग हैं रघुनाथपुर नफरा अकेडमी स्कूल के सामने में और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये जो बच्चियाँ आज वी वांट जस्टिस का जो बैनर लेके और ये हाथ में मसाल लेके निकली है ना, ये न्याय के आस में निकली है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ पहले तो बलात्कार, उसके बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उस हत्या को पहले तो आत्महत्या बताया जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि वो हत्या की गई है। सीबीआई इस केस को हैंडल करती है, सीबीआई इस केस में कूदती है, तब जाके इस केस में नए नए सुराग आते हैं। और ये देखिए जो बच्चियां हैं ना, ये हमारे देश का भविष्य है, कल का भविष्य। ये कल जाके क्या बनेंगे किसी को नहीं पता है। और वो जो लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या की गई, न जाने वो अगर गरीबों की इलाज कर दी तो कितने गरीबों को उससे सुविधा मिलता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसको मार दिया गया, ये आप सभी जानते हैं। और उन सब चीज़ों के न्याय के लिए ये बच्ची आज रोड पे उतरी हुई, आपको दिखाना चाहेंगे। पीछे लगातार बहुत सारे लोग हैं इन बच्चियों का समर्थन कर रहे हैं ताकि इनका मनोबल बढ़े। और अभी के समय आप सोच सकते हैं कि बच्चियों को अपना सुरक्षा के लिए खुद प्रदर्शन करना पड़ रहा है। কি নাম তোমার? রিক্তা মণ্ডল। কিসের জন্য নেমেছো রাস্তায়? জাস্টিস, বিচার চাই। কি এরম হয়েছে যে বিচার চাইছো? যেটা হয়েছে আরজিকর ঘটনা, ওটা খুবই নিন্দনীয় একটা ঘটনা, তাই আমরা এর প্রতিবাদে বিচার চাই। একটা মেয়ে হিসাবে তুমি নিজে কতটা সুরক্ষিত মনে করো? মনে করি না, আমাদের রাজ্যে সুরক্ষা নেই। কোন ক্লাসের ছাত্রী তুমি? মাস্টার্স। রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে বেরো? এখন ভয় লাগছে কদিন ধরে? কি লাগছে না? হ্যাঁ, এখন ভয় লাগছে। মা বারণ করছে না বাড়ি দিয়ে বেরোবি না? বাড়ি থেকেও বারণ করা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে বলা হচ্ছে। তুমি কি করছো, বেরোচ্ছ? হ্যাঁ, বেরোচ্ছি। এরম লোকের ভয় কি পড়াশোনা ছেড়ে দেবে? না, ছাড়বো না, আমরা এর বিচার চাই, তাই আমরা প্রতিবাদে নেমেছি। কি নাম তোমার? বিশাখা হাজরা। কোন ক্লাস? 10। 10 ক্লাসে? ভয় পাচ্ছো? হ্যাঁ, কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না, আমাদের লড়ে মানে নিজের জায়গাটা করে নিতে হবে। আমরাও দেখে দেবো যে না, এরকম চলবে না। তোমার কি নাম? আমার নাম উপাসনা সেনীতি। আচ্ছা, একটা লেডি ট্রেনি ডক্টরের সাথে যে মানে নির্মমভাবে যে জিনিসগুলো ঘটেছে, ওই ডক্টর যদি আজকে বেঁচে থাকতো কত লোকের উপকার হতো। তো ওই হিসাবে অন্য মেয়ে কি চাইবে কি আমি ডক্টর হব? ডক্টর হলেই তো লোকে মেরে দিচ্ছে। না, এটা উচিত না। সব মেয়েই চায়, অনেকেই চায় ডক্টর হতে, কিন্তু এই ঘটনার জন্য যে ডক্টর হতে চাইবো না, এটা উচিত নয়। আমরা তো তার জন্যই বিচারটা করতে নেমেছি, যে যাতে সবার স্বপ্ন পূরণ হয়। সবার স্বপ্ন পূরণ হয়। হ্যাঁ, যারা ডক্টর হতে চায়, যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, প্রত্যেকটা মেয়ে যারা যাই হতে চাক না কেন, সবার যেন স্বপ্নটা পূরণ হয়। আমরা তার জন্যই বিচারে নেমেছি, যারা মেয়েরা কোনো নির্ভয়ে বাইরে বেরোতে পারে, নির্ভয়ে চাকরিতে যেতে পারে, সব কিছুটা করতে পারে নির্ভয়ে, সেটা ঘরে এবং বাইরে সব জায়গায়। একটা মেয়ে হিসাবে নিজেকে কতটা সুরক্ষিত মনে করো? নিজে এখনও পর্যন্ত সেফ ফিল করি না, বাইরে বেরোলে এখনও ভয় লাগে, বিশেষ করে এই কিছুদিন ধরে খুবই ভয় লাগছে, কিন্তু তার জন্যই বাইরে বেরোনো, আজকে তার জন্যই বিচার, যাতে আমরা এই নির্ভয়ে বাইরে বেরোতে পারি। सोच लीजिए ये बच्ची खुद बोल रही है कि हम लोगों को भरोसा ही नहीं है कि हम लोग सुरक्षित है। अब हम लोग कैसे राज्य में रहते हैं, कैसे देश में रहते हैं। और सिर्फ मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं करता हूँ कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना घटती है। पश्चिम बंगाल में जिस दिन ये घटना घटती है उसके महज कुछ दिन बाद उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ ऐसी घटना घटती है, उसके दूसरे दिन एक नाबालिग के साथ भी ऐसी घटना घटती है। और हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है ना, वो सो चुका है। और सोने का मतलब यही है कि कानून व्यवस्था सोने के कारण ये निर्मम तरीके से दुष्कर्म किया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है और इस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी के समय में अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है ना, तो उसको समय लग जाएगा। आप सोचिए, निर्भया का नाम आप सभी को याद होगा। निर्भया को न्याय मिलने में कितना समय लग गया था, निर्भया के माँ बाप को कितना लड़ना पड़ा था न्याय के लिए, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। उसको तब जाके न्याय मिला था। कि नाम काका? প্রেমানন্দ চক্রবর্তী। পশ্চিমবাংলায় নিজের তোমার তো মেয়ে হবে, কতটা তোমার মেয়ে সুরক্ষিত? শঙ্কিত তো বটেই, কিন্তু শঙ্কিত হলে তো হবে না, তার প্রতিবাদের জন্য আমরা এই লড়াই নেমেছি। আর এটা থেকে পিছিয়ে আমরা কেউ যাব না। পিছিয়ে যাবে না? না। এই লড়াই করে কি মনে হচ্ছে, কি আশা আছে, কি পাবে তোমরা, ফল কি হবে? আশাটা তো আশার জন্যই তো মানুষের লড়াই, সেই যাতে এই আশাটা আমাদের ঠিক থাকে তার জন্যই আমরা এই লড়াইটা করছি। এই লড়াই আমাদের থামবে না। যেভাবে যতই মানে প্রতিক্রিয়া শক্তি যদি আমাদের বাধাও দেয়, আমরা কিন্তু এর থেকে পিছিয়ে যেতে চাইছি না। छोटे छोटे बच्चियां जो आज प्रदर्शन कर रही है ना, जो रास्ते पे उतर के अपने लिए जस्टिस मांग रही है ना, वो सच में बहुत अद्भुत बात है। और सच में
हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों की बातों को सुनेगी और कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा और तब जाके हमारे देश में बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और केंद्र सरकार से अनुरोध रहेगा, स्पीड ट्रायल कोर्ट के माध्यम से जितने भी बलात्कारी हैं ना उनको सजा मिलनी चाहिए और एक अलग स्पीड ट्रायल कोर्ट देश में लाना चाहिए। हम लोग संसद भवन बना देते करोड़ों करोड़ों खर्च करके, हम लोग मेट्रो चलाने की बात करते, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते, लेकिन हमारे देश में हमारी घर की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग वैसे बुलेट ट्रेन का क्या करेंगे, वैसे संसद भवन का क्या करेंगे जहाँ पे हमारे घर की बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारे घर का इज्जत सुरक्षित नहीं है। हम लोग को ऐसा संसद भवन नहीं चाहिए। हमें जरूरी है कि हमारे देश में स्पीड ट्रायल कोर्ट बनाया जाए अलग से और उसमें अलग से जज की नियुक्ति की जाए, जहाँ पे 1 महीने के अंदर जो दोषी पाया जाए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाके हमारे देश में बलात्कार रुकेगा। नहीं तो ये जो अपराधी होते हैं वो सरकार की रोटी खाते हैं, 3 टाइम खाना मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, सरकारी सुविधा मिलती है और ठीक 5 साल 10 साल जेल कटने के बाद अच्छे सजा के माप में इनको सरकार माफ कर देती है, निकल के आ जाते हैं। लेकिन परिवार वाले पे क्या बीती आप जानते हैं। आज अगर निर्भया का कातिल अगर जिंदा रहता तो उसके माँ बाप पे क्या बीती पता है। तो अनुरोध रहेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से इन सब विषयों पे कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई होनी चाहिए और स्पीड ट्रायल कोर्ट की हम सभी मांग करते हैं, क्योंकि स्पीड ट्रायल कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपराधियों को 1 महीने के अंदर सजा मिलती है और स्पीड ट्रायल की हम लोग सभी मांग करते हैं, क्योंकि हमारे घर की हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत है। आज अगर इनके साथ कुछ दुष्कर्म होता है और हम लोग कैंडल मार्च लेकर निकल जाते हैं, लेकिन न्याय कैंडल मार्च लेकर निकलने से नहीं होगा। न्याय कैंडल मार्च लेकर निकलने से होता तो निर्भया को न्याय बहुत पहले मिल गया होता, लेकिन न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और हमारे देश की ये कानून व्यवस्था है जहां न्याय के लिए हमको लड़ना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के जितने नेता लोग हैं ना, विदेशों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन विदेशों से ये नहीं सीखते कि वहां पे लड़कियों को कितना सुरक्षित माना जाता है। आज अगर हम लोग दूसरे देश में जाते हैं, दुबई में जाते हैं और गलती से किसी लड़की को देख देते हैं ना, तो वहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है ना हम लोग पे एक्शन ले लेता है, लेकिन यहाँ पे हमारे घर की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेला जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको मार दिया जाता है और हम लोग इंतजार करते हैं, रैली निकालते हैं कि उनको कब न्याय मिलेगा, दोषियों को कब सजा मिलेगी। तो अनुरोध रहेगा नेताओं से भी कि अपने घर का इंतजार मत कीजिए, आपके घर में भी बेटी बहन है और आपके घर की बेटी बहन के ऊपर जब तक बात नहीं आएगी, आप लोग रास्ते पे नहीं उतरिएगा। तो आप सभी मिलकर, चाहे वो संसद भवन हो चाहे वो विधानसभा हो, मांग कीजिए कि स्पीड ट्रायल कोर्ट होना चाहिए हमारे देश में, तब जाके अपराधियों को सही सजा मिलेगी और हमारे घर के जो बहन बेटी है उनका इज्जत सुरक्षित रहेगा और वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो निकल सकेंगी। जय हिंद।